Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 8th class students, we were revising our first chapter, that is operating system. Now we are going to revise the exercise of this chapter. Tick the correct answer, fill up true, false and question answers. So from page number 14, firstly we will do the tick the correct answers. First one is, which of the following is a set of programs that gives instructions to a computer? कि इनमें से कौन सा set of program है जो कंप्यूटर को instructions देता है? That is software. पेज नंबर 14 पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंप्यूटर एंड नन ऑफ दीज. सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को. सेकेंड वन इज, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू रन द अदर सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर. कि कौन सा टाइप है सॉफ्टवेयर का जो हेल्प करता है और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए. सो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स द अदर सॉफ्टवेयर. So third one is, which of the following is an interface between the user and software? That is also operating system. User और software के बीच का जो interface है वो कौन है? Operating system. CUI is also known as CLI, that is command line interface, and CUI की full form है command character user interface. Fifth one is, the command prompt of MS DOS is, command prompt कौन सा है इनमें से? MS DOS का, that is your B. C:\\. This is the prompt that we use in MS DOS. Then we have the fill-ups. Okay, first one is, a computer uses an dash software to do task given by the user, that is application. कंप्यूटर किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है. सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग. जो प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की उसको बूटिंग बोला जाता है. BOOTING. इसमें बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक बुक करते हैं. थर्ड वन इज, डैश सिस्टम डीअलोकेट्स द मेमोरी स्पेस आफ्टर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड. कौन सा सिस्टम है जो मेमोरी को डीअलोकेट करता है, वापस ले लेता है जब टास्क खत्म हो जाता है? कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. देन फोर्थ, द कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ MS DOS इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम. कमांड प्रॉम्प्ट जो है MS DOS का वो कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? CUI बेस्ड. ठीक है, करेक्टर यूजर इंटरफेस है. देन वी हैव द ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है? ना, इट्स फॉल्स. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है. सेकेंड इज, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज ओनली फॉर वन स्पेसिफिक पर्पज. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज होता है, एंड इट इज़ ट्रू. जैसे कि कैलकुलेटर कैलकुलेशंस के काम आता है और कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम वर्ड प्रोसेसर यूज करते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. थर्ड वन इज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इट इज़ ट्रू. माइक्रोसॉफ्ट विंडो मल्टी यूजर की एग्जाम्पल है. ओके, द नेक्स्ट इज, the CUI make use of icons, buttons and menus. So it is false. CUI में icons, button या menus यूज नहीं होते हैं, वो GUI में होते हैं. So it is false statement. Fifth number is, the Palm operating system is an example of a single user single task operating system. जो Palm operating system है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? सिंगल यूजर सिंगल टास्क की, and it is true. Palm बहुत पहले यूज हुआ करते थे. Then number 6, example of operating systems are MS DOS and Mac OS. So these are the example of operating system, and it is true. MS DOS Microsoft DOS और disk operating system, और Mac Macintosh operating system. Okay. After this we are going to do our question answers. First one is, what is the need of an operating system? Operating system की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें?
सो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक इंटरफेस है यूजर के बीच में और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। इट रिसीव ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अकॉर्डिंगली पासेस द कंट्रोल टू हार्डवेयर डिवाइसेस। ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शन ले लेता है और उसी के थ्रू वो हार्डवेयर को कंट्रोल दे देता है कि आप अपने ये काम परफॉर्म करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एनी 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई 3 काम हमने ऐसे बताने हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता हो। सो फर्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट में वो क्या करता है, इट अलोकेट्स द मेमोरी स्पेस टू अ टास्क। ठीक है, वो टास्क कोई भी परफॉर्म करना है, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करना है, फॉर एग्जांपल वर्ड ओपन करना है, तो वो हमें मेमोरी स्पेस देता है कि आप ओपन कर सकते हो। अगर उसके पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो वो एरर जनरेट करेगा। ओके, सेकेंड वन इज इट डी अलोकेट्स द मेमोरी स्पेस आफ्टर द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। जब हमारा टास्क खत्म हो जाता है, हम ऊपर से क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं तो ये मेमोरी को वापस ले लेता है जब मेमोरी फ्री हो जाती है। सो रिसोर्स मैनेजमेंट इज सेकेंड टास्क। एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। वो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट टास्क इज इट हेल्प्स ट्रैक ऑफ द प्रोसेसेस दैट हैव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो वो रिसोर्सेज के लिए उन प्रोसेसेस को ट्रैक करके रखता है, क्यों में रखता है, जिनको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इज इट असाइंस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू अ प्रोसेस। और जैसे ही वो ट्रैक करके रखता है, जब प्रोसेसेस की बारी आती है वैसे वैसे वो उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर असाइन करता जाता है। देन थर्ड इज प्रोसेस मैनेजमेंट। अ प्रोसेस इज अ टास्क इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि कोई काम है जो अभी चल रहा है। ठीक है, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन अ टास्क गिवन बाय द यूजर टू द CPU। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हम यानी कि यूजर जब कोई काम कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या करता है, असाइन कर देता है वो काम किसको, CPU को। एंड कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। ऑर्डर एज इन कि वो उसको लाइन अप कर लेता है कि फर्स्ट ये काम परफॉर्म होगा, सेकेंडली ये, थर्ड वाला ये। ठीक है, तो वो लाइन अप करता है तो उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। वो एग्जीक्यूशन मतलब वो किस तरह चल रहे हैं, किस लाइन एंड ऑर्डर में वो चल रहे हैं। ठीक है, इट अलोकेट्स द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस। वो सीक्वेंस जिसमें वो लाइन अप होंगे कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, जो भी है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो रिसोर्सेज अलोकेट करता है। थर्ड क्वेश्चन इज गिव अ टेबल शोइंग द डिफरेंस बिटवीन GUI एंड CUI। हमें एक टेबल देना है जिसमें हम CUI और GUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डिफरेंस बताएंगे। सो यू हैव 2 क्वेश्चंस, गिव अ टेबल that shows the difference between CUI and GUI and what are the advantages of GUI over CUI। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों क्वेश्चंस में। सो इसमें सिर्फ एडवांटेजेस बतानी है लेकिन इसमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, सो हम डिफरेंस बता रहे हैं अभी। CUI यूजेज ए कीबोर्ड टू गिव इनपुट कमांड्स टू द कंप्यूटर। CUI में क्या यूज होते हैं, कीबोर्ड यूज होता है इनपुट देने के लिए। लेकिन GUI में हम क्या यूज करते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस और फिंगर। स्टाइलस एज इन जो पहले फोन्स के साथ एक पेंसिल टाइप ऑब्जेक्ट नहीं आता था जिसके थ्रू आप काम करते थे फोन पे, दैट इज योर स्टाइलस टू गिव कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। ग्राफिकल में हम कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस और फिंगर यूज करते हैं, लेकिन करैक्टर में हम सिर्फ कमांड्स को टाइप कर सकते हैं तो हम सिर्फ कीबोर्ड यूज करते हैं। सेकेंडली यूजर नीड टू टाइप ऑल द कमांड्स ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट। यूजर को कमांड टाइप करनी पड़ती है सारी की सारी। ठीक है, अ यूजर नीड टू क्लिक ऑन द आइकन बटन एंड विंडोज एंड माउस ऑन द स्क्रीन टू गिव अ कमांड। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप नॉर्मली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे यूज करते हो तो आप क्या करते हो, सिंपली क्लिक करते हो, अपनी गैलरी ओपन करनी है, यू नीड टू क्लिक इट, अपने माई कंप्यूटर ओपन करना है, रिसाइकल बिन ओपन करना है, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेंगी कमांड्स। थर्ड वन इज यूजर नीड टू रिमेंबर ऑल द कमांड्स एंड देयर सिंटेक्स। ठीक है, यूजर को सारी कमांड याद करनी पड़ेंगी। और सिंटेक्स, सिंटेक्स का क्या मतलब है कि एक ऑर्डर होता है जिसमें उनको लिखा जाता है, आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, सो वो उसको बोला जाता है सिंटेक्स। तो आप उसी ऑर्डर में वो कमांड टाइप करोगे। अगर उसमें माइनर सी भी A, E, I किसी भी चीज़ की मिस्टेक हुई तो वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर गिव्स कमांड बाय सिंपली क्लिकिंग, वो सिंपल क्लिक करके माउस से कमांड देता है ऑन द आइकन्स और बटन्स। ठीक है, वो सिंपली क्लिक करता है कमांड के लिए। फोर्थ क्या है, उसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं। करैक्टर की है लिनक्स, बैश शेल और MS-DOS।
और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैक ओएस। माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो आप नॉर्मली यूज करते हो। ओके, योर फोर्थ क्वेश्चन इज नाउ गिव द एडवांटेजेस ऑफ GUI ओवर CUI। हमें एडवांटेजेस देनी है, वी विल रीड इट फ्रॉम द बुक एक्चुअली, इट्स ऑन पेज नंबर 13। सो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? GUI इज विजुअली अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, तो GUI क्या होता है? विजुअली अपीलिंग होता है। ये पिक्चर देखो, ठीक है, हमें पता है कि हमने कहाँ पे क्लिक करना है, उससे क्या होगा, प्रॉपर दिया हुआ है ना इसकी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। सो फर्स्ट इज अ GUI इज ईजियर टू वर्क ऑन एज कम्पेयर टू अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। GUI पे काम करना आसान होता है कि कोई जो फर्स्ट टाइमर भी है वो भी देख के बता देगा कि हाँ ये ओपन करना है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, क्योंकि प्रॉपर उसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। अगर हम अपने माउस को किसी चीज़ पे लेके जाएंगे ना तो वो प्रॉपर उसकी एक हेडिंग देगा कि ये स्पेशली इसी काम के लिए बना है। ठीक है, सेकेंड इट एनेबल इट्स यूजर टू व्यू, कंट्रोल एंड स्विच बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस एट द सेम टाइम। सो GUI हमें एनेबल करता है कि दो या दो से ज़्यादा अगर एप्लीकेशन खुली है उनको व्यू करना, देखना, उनको कंट्रोल करना, उनमें स्विच करना। यहाँ पे इस पिक्चर पे देखो, यहाँ पे दो एप्लीकेशंस इन्होंने ओपन की हैं। ठीक है, एक पावर पॉइंट और एक पेंट है। ठीक है, तो वो ये हमें अलाउ करते हैं, अगर पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगी, पेंट पे क्लिक करेंगे तो पेंट ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज GUI प्रोवाइड पॉपअप मेन्यू एंड होस्ट ऑफ अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये हमें पॉपअप मेन्यूज प्रोवाइड करता है। हम राइट क्लिक करते हैं तो वो रिफ्रेश वाली पॉपअप मेन्यू नहीं आ जाती, उसको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। ठीक है, और अदर ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। दीज कैन बी यूज टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर। ये हम यूज कर सकते हैं फाइल्स और फोल्डर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, द यूजर डू नॉट नीड टू रिमेंबर अ होल लॉट ऑफ कमांड एज वॉज नीडेड फॉर यूजिंग CUI। तो यूजर को कमांड्स याद रखनी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज a GUI provides the facility to access a computer at a far off location. This is as known as remote access. तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर कहीं और है, तो हम उसको सॉफ्टवेयर की हेल्प के साथ एक्सेस कर सकते हैं, उसके फाइल्स को देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है? रिमोट एक्सेस। फिफ्थ वन इज a GUI enable its user to carry out multiple tasks at the same time. GUI ये enable करता है कि आप एक से ज़्यादा काम एक ही टाइम पे कर सकते हो। They can open different applications such as Microsoft Word, Calculator, web browser at the same time. उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि आप क्या ओपन कर सकते हो, वर्ड, कैलकुलेटर और कोई वेब ब्राउजर जैसे कि क्रोम, एक ही टाइम पे आप उसको ओपन कर सकते हो। एंड द यूजर कैन स्विच बिटवीन दैम एट विल। आप अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसमें स्विच कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फर्स्ट इज सिंगल यूजर मल्टीटास्क, single user single task. First we are going to explain single user multitask. We are going to do it book also. So single user multitask on page number 9. This type is most widely used operating system. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड मैक OS बाय एप्पल आर एग्जाम्पल ऑफ सच ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? विंडोज एंड मैक बाय एप्पल। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं जो नाउ डेज यूज होती है। नाउ डेज कंप्यूटर्स आर सिंगल यूजर मल्टीटास्क। दे अनेबल अ सिंगल यूजर टू डू सेवरल टास्क एट द सेम टाइम। फर्स्टली उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। सेकेंडली उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, और थर्डली उन्होंने बताया कि ये क्या करती हैं, यूज़र को एनेबल करती है, इस योग्य बनाती है कि वो कई सारे काम एक ही टाइम पे कर सके। देन दे गिव अ एग्जाम्पल यू कैन यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो जब आप एक डाउनलोड कर रहे हो कोई फाइल को फ्रॉम द इंटरनेट, मतलब आपका इंटरनेट भी चल रहा है और आप क्या कर रहे हो, साथ साथ अपना म्यूजिक सुन रहे हो, एज वेल एज लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग्स। मीन्स आप 3 टास्क यू आर डूइंग एट अ टाइम। सो सिंगल यूजर मल्टीटास्क। सेकेंड था सिंगल यूजर सिंगल टास्क, इसके ठीक ऊपर दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंप्यूटर टू लेट वन यूजर डू वन टास्क एट अ टाइम। ये क्या करता है, यूजर को अनेबल करता है कि आप एक ही काम करो एक ही टाइम के, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हो। द पाम ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले यूज हुआ करते थे बाय द पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, आप ये इसकी एक टाइप है। द पाम OS इज नॉट मच इन यूज दीज डेज। सो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम अभी इतना यूज नहीं होता है। ओके,
So this is your single user single task. So it is end over here. ओके जिसने भी रिटन असाइनमेंट नहीं की है उन्होंने ही करनी है, जिन्होंने कर ली है ऑलरेडी उन्होंने नहीं करनी है. ओके सो अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, रीड करना है इसको. कोई क्वेरी होगी यू कैन आस्क. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके.